A very good morning, everyone. As you know, this is our third class of Corporate Laws BCom Honors paper BCH 2.3. And by now, so far, we have covered a lot of topics from Unit 3 to Unit 3 and 4, basically. And today, I'll also be covering the last unit. So, saying effectively, we have covered a lot of topics like companies management, directors, company meetings, dividend. Then we did auditors, and now today we are supposed to do winding up. And this is basically, now we are ending with the sessions, and the company is also going to be wound up now. We are going to end the company. So just giving you a base of what are we going to do today. See, as you know that a company comes into an existence with a legal process, is an artificial legal entity. It is an artificial legal person. So when we get it into existence, when it is born through a legal process. We have to have a lot of formalities, and we have to fill a lot of forms. We have to have a lot of legal formalities which have to be done before it comes into existence. Okay, so how does it end? How does it die? How does a company die? So this thing also is done legally. We cannot just start a company and shut it anytime. You must have done in your first chapter when you were doing features of a company form of organization. You must have done one of the features which was perpetual succession. Perpetual succession means permanent stay. Once a company is born, it stays till the time it is wound up through a legal process. Okay, or even if all the members of the company die, the company still exists, right? So this is what I'm talking about. So how do we end the company? How do we shut it? We shut it through the process which is called as winding up of the affairs of the company. So you have to remember, basically we are ending the life of the company through this process, and then what is done, we start a legal process of winding up of the company, and then what happens, its property, its the is assets, its liabilities are administered. Okay, administered means that a person is appointed and he administers, he checks out that what is the, he values the assets and he values the liabilities. How much does the company have, and how much the payout, that means how much the company needs to give out to the people from whom the debts have been taken, or the contributories, that means the shareholders who are there. So all these things are administered, the creditors, how much they have to be paid, and then finally when no assets, no liabilities are there, it is wound up and it is dissolved. Okay, so we'll be starting with it, this winding process. I'll be telling you what are the modes of winding up in a company form of business organization, what kind of difference has come in the provisions of the Winding Up of Companies Act 2013 till it has come up. And we'll be also doing insolvency and bankruptcy code, which is 2016, which must be a new thing for you to understand today. And also we will be covering the last unit, which is Depositories Act 1996 today. Okay, I would seriously try to make things familiar with you, so that whenever you are studying on your own for your examination, you are much, and you know the concept very well. It would become very easy for you to comprehend things at a later stage. Fine. So there are certain definitions of the term winding up. To the as I will start.
There is a highlighter. Oh, what happened? Just a second. There is my highlighter which will help you see the slide. Am I talking about? What am I talking about? And where is that thing which I am talking about? So basically winding up, as I told you earlier, it is the process by which the life of a company is brought to end. Okay, by which the life of a company is brought to an end. Always keep this in your mind that it is a process. See, children, students, the thing is that we have also done a chapter of accountancy, which is dissolution. Okay, generally people use two terms interchangeably. The terms are winding up and dissolution, but it is wrong. They are two separate terms. There are two different terms which are not to be used interchangeably. Okay, as I am again and again focusing on a particular word, which is winding up of a company is defined as a process. It is a process, and dissolution is what? Dissolution is the end result of this process. Okay, in case of winding up, the company's affairs keep on going. They are not immediately stopped. For example, I have a company ABC Limited. I think some sort of problems are there, and I would want to wind it up, and I apply to the tribunal that the company is to be wound up. It doesn't mean that I will stop working. I will immediately stop all the businesses. It is not possible. We have to do it gradually. A lot of legal formalities have to be complied with for the proper dissolution takes place. Okay, so winding up एक process है, एक step by step procedure है जो follow करना पड़ता है एक company को की लाइफ को एंड करने के लिए. जब वो प्रॉपरली डिसॉल्व, वो खत्म हो जाती है, जब उसका नाम स्ट्रक ऑफ हो जाता है कंपनी के रजिस्टर से, रजिस्ट्रार उसका नाम स्ट्रक ऑफ कर देता है, तब इट इज डिसॉल्व्ड. सो आप हमेशा इसको ध्यान रखिएगा. दे आर नॉट the term to be used interchangeably. Okay, so winding up of a company is defined as a process by which the life of the company is brought to an end and its property administered. Administered matlab it is valued, it is real, the asset realized, they are sold off, the money is received, and they are the money is distributed amongst the creditors. जिससे पैसा ले रखा है कंपनी ने, उनको पैसा दिया जाता है. जो secured creditors होते हैं उनको पैसा दिया जाता है, और just for the benefit of the members and the creditors. फिर उसके बाद जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास पैसा जाएगा. तो property is administered, they are valued, assets and liabilities, they are valued and they are distributed amongst the members and the creditors. Okay, so there are different professors of law who have given different definitions of the concept of winding up. So Professor Gower, well-known professor, winding up of a company is the process whereby life is ended and its property administered. Same thing which we have just read. Okay, an administrator. Who is an administrator? Who does all these things? Valuing of assets, realization of assets. Realization माने उसको sold करके, sell करके उसका जो पैसा मिलेगा हमें assets का, ये कौन करता है? एक liquidator करता है. लिक्विडेटर को जनरली गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और ये लिक्विडेटर क्या करता है? ही इज अपॉइंटेड और ये कंट्रोल और चार्ज ले लेता है कंपनी का, उसके एसेट्स का, हाउ टू whom what has to be paid, to pay off the debts of the company, and finally जो भी बच जाता है after paying the debts of the company, distributing the surplus amongst the members in accordance with their rights. Okay, so this is what is done in so winding up. Another definition which is also given, which is given by Halsbury Laws of England, it says, so winding up is a proceeding. हमेशा ध्यान रखो, winding up is a proceeding. It is a process
by means of which the dissolution of the company is brought about. अब process होगा तभी तो end होगा, और end क्या है? Dissolution है, ठीक है? It is a process, it is a proceeding, एक step by step proceeding है, by means of which the dissolution of the company is brought about, and in the course of which its assets are collected and realized. वही जो हमने अभी तक ऊपर बात करी है, सारी definitions एक ही तरीके की बात करती हैं, क्योंकि वो concept तो एक है ना. And applied in payment of its debts, and when these are satisfied, what are satisfied? Debts. जब हम debts को pay off कर देते हैं, the remaining amount is applied for returning to its members the sums which they have contributed to the company in accordance with the articles. In accordance with the articles मतलब हमने कोई rules and regulations बनाए होंगे कि भाई अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो इसको हम पहले पे करेंगे, इसको हम बाद में पे करेंगे. जो भी आर्टिकल्स में हमने बायलॉज बना रखे हैं उस हिसाब से हम वाइंडिंग अप में चलते हैं. So we get to know that winding up is a legal process. Fine. So these are some definitions of winding up. अब आपको एक बेस मिल गया है. बेस क्या कह रहा है कि winding up process है. एंड क्या है? dissolution. तो प्रायर स्टेज क्या है? winding up. Subsequent स्टेज क्या है? dissolution. ठीक है? ओके, हमने अभी ये सब कर लिया है, हम बता दिया है मैंने आपको. So there are differences between winding up and dissolution. At the end of winding up, the company will have no assets and liabilities left. So when the affairs of the company are completely wound up, the dissolution of the company takes place. जब खत्म हो जाते हैं सारे assets realize हो जाते हैं, liabilities pay off हो जाती हैं, तब dissolution होता है. On dissolution, ये बहुत important है. On dissolution, the company is struck off from the register of the companies and its legal personality as a corporation comes to an end. और तब इसकी legal जो personality है, it comes to an end. ठीक, ये बात हमें समझ में आ जाती है. Great. अब एक और finally वही बातें एक और ऑथर ने बताई हैं. प्रोसेस है, इसमें डायरेक्टर्स के हाथ से कंपनीज के अफेयर्स को ले लिया जाता है, क्योंकि उसके बाद सारे एसेट्स को रियलाइज करना होता है बाय द लिक्विडेटर. लिक्विडेटर कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर है. एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है बाय द ट्रिब्यूनल और द गवर्नमेंट, एंड इट्स डेट एंड लायबिलिटीज आर डिस्चार्ज्ड आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ रियलाइजेशन. जो भी डेट्स हैं, जो भी लायबिलिटीज हैं, जो भी पे ऑफ करना है बाहर, जो हमने लोगों से ले रखा है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डेट उठा रखा है, लोन ले रखा है, उसको पे करना है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करना होता है, फिर उसके बाद लास्ट में हमने मेंबर्स को भी पे करना है. एनी सरप्लस रिमेनिंग इज रिटर्न टू इट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर्स. ठीक है? सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. ये भी हम अभी बात कर चुके हैं कि वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस, dissolution is the end result, winding up is a prior stage, dissolution is the subsequent one. So on the commencement of winding up, the corporate status and powers of the company continue. वही मैं बोल रही थी आपको कि जब वाइंडिंग अप शुरू होता है तो कंपनी को हम एकदम बंद नहीं कर देते, उसका कॉर्पोरेट स्टेटस अभी भी रहता है, वो अभी भी काम कर रही है, उसके बिजनेसेस एकदम से हम ठप नहीं कर सकते. सो इट इज स्टिल इन द प्रोसेस. You know, a lot of legal formalities they have to be complied with for the dissolution of the company. So on dissolution, the name of the company is struck off and then the company ceases to exist. Ceases to exist मतलब it stops to exist. अब उसका खत्म हो जाता है. It doesn't exist anymore. Okay? तो ये आपने ध्यान रखना है. Okay. Now an important concept, modes of winding up. सबसे पहली बात जिसमें बच्चों को बहुत confusion होती है, क्योंकि हुआ क्या था, मैं आपको हमेशा से यही बोलती हूँ कि हमेशा लॉ का लेटेस्ट एडिशन पढ़िए. लेटेस्ट एडिशन नई किताब होनी चाहिए, मैक्सिमम 6 महीने
साल भर पुरानी, इससे ज्यादा पुरानी किताब नहीं पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। यू शुड बी रीडिंग लेटेस्ट एडिशंस, क्योंकि बहुत अमेंडमेंट्स, बहुत नोटिफिकेशंस आती रहती हैं जो इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए किताब में जो आप पढ़ रहे हैं। सो basically how it started with, earlier when the Companies Act 2013 came up, it provided for two modes of winding up. Okay, the first one was by the tribunal, जिसको हम जनरली कंपल्सरी वाइंडिंग अप बोलते हैं। जब ट्रिब्यूनल बोल देता है कि भाई अब आप वाइंड अप कर लीजिए बिकॉज ऑफ सम रीजंस, व्हेन ट्रिब्यूनल आस्क्स कि भाई अब आप वाइंड अप कर लीजिए, तब वाइंड अप करना पड़ता है। दैट इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप अंडर सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, लेकिन ये अभी है, दैट मीन्स these modes जो मैंने अभी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये it is the present state of what happens in the in the process of winding up, the modes of winding up। लेकिन जब कंपनीज एक्ट 2013 कमेंस हुई थी, जब शुरू हुई थी, जब आई थी, तब there were two modes of winding up। first was by tribunal and second one was voluntary। जो अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं वो दोनों कंपनीज एक्ट के अंडर आते थे। अब आप डिफरेंस देख रहे हो, अब ये लिखा हुआ है, ये तो कंपनीज एक्ट के अंडर ही आ रहा है, दिस इज अगेन बाय ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल के अंडर ही है। अच्छा, आई होप यू नो व्हाट इज अ ट्रिब्यूनल। बहुत से बच्चों को जो मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ, मे बी अगर आपने बिल्कुल अभी you have just started with the company law, तो आपको वो words से आप familiar हो सकता है ना हो, तो I would just give a glimpse of what tribunal। एक सुप्रीम कोर्ट ने ये एक establish किया which is called as, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके, ये सेम वर्ड्स हैं। तो NCLT क्या है, एस्टैब्लिश्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया इसको। क्यों किया? टू हैंडल द लॉज रिगार्डिंग द कंपनीज ऑफ द कंट्री, कि भाई इट एक्चुअली विल रिजॉल्व द conflicts in the company law, any sort of conflicts in the companies, जो because of non-compliance, जो भी problems related to corporate law है, वो NCLT handle करता है। ओके, ट्रिब्यूनल हैंडल करता है। NCLT ट्रिब्यूनल एक ही बात है, ट्रिब्यूनल NCLT का शॉर्ट फॉर्म है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके, तो बेसिकली इट इज अ जुडिशियल अथॉरिटी। ये quasi judicial authority क्या होता है, partly having a judicial character। अब जो courts हैं वो तो completely judicial authorities होती हैं जो judgments देती हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल होता है ये quasi judicial authority बोला जाता है। इसका क्या मतलब है कि by it has possession of the right to hold hearings, it can conduct investigations, and it can make decisions in the general manner, okay, of courts। जो courts करते हैं उसी तरीके से, लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर कोर्ट्स का एक प्रॉपर सेटअप होता है, वो एक प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन। इसमें इतना स्ट्रिंजेंसी नहीं है कि वैसे ही वैसे करना है, लेकिन तरीके वही हैं। हियरिंग्स होती हैं, इन्वेस्टिगेशन होती हैं, बट सम सॉर्ट ऑफ थोड़ा बहुत लिबरल होता है कोर्ट्स के कोर्ट से। तो ट्रिब्यूनल से क्या होता है कि हम वी टेंड टू रिड्यूस द बर्डन ऑन कोर्ट्स। जो भी कंपनी से रिलेटेड इश्यूज आते हैं वो ट्रिब्यूनल के पास आते हैं। ओके, तो ये भी पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि NCLT क्या है, तो आप इसको भी एक बारी अच्छे से देख के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, तो जब कंपनीज एक्ट शुरू हुई थी, दो तरीके से वाइंडिंग अप होता था, एक होता था बाय द ट्रिब्यूनल और एक होता था वॉलंटरी। वो दोनों कंपनीज एक्ट के अंडर आता था, बट विद द इंसॉल्वेंसी
and Bankruptcy Code 2016, which had come. There is only one mode of winding up left with the Companies Act, and that is this one, compulsory winding up or the tribunal. अब सिर्फ ये रह गया है कंपनीज एक्ट के अंडर. ये देखो, समझ में आ रही है मेरी बात? जब 2013 शुरू हुई थी कंपनीज एक्ट, तब दो तरह से वाइंडिंग अप का प्रोसेस होता था, ट्रिब्यूनल से या वॉलंटरी. वॉलंटरी मतलब अपने आप कंपनी कहे कि हमें वाइंड अप होना है, हमारी एग्जिस्टेंस को सीज कर दो आप अब. लेकिन जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आ गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 आया, मैं अभी बताऊंगी ये क्या है. इसके बाद क्या हुआ, जो वो वॉलंटरी लिक्विडेशन है कंपनी का, वॉलंटरी लिक्विडेशन इसके अंडर चला गया. अब वाइंडिंग अप तो होती है, उन्हीं दो तरीकों से होती है जो पहले होती थी, बट द थिंग इज एक कंपल्सरी वाइंडिंग अप कंपनीज एक्ट के अंडर है, और वो जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप या वॉलंटरी लिक्विडेशन है कंपनी की, वो आईबीसी कोड के अंडर आ गई है. ठीक है. अब आपने दो तीन चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगी, आपने बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे आप कंफ्यूज हो सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि आप बहुत इन डेप्थ तो पढ़ते नहीं हो, आप एकदम शैलो, अगर आप अपनी शैलो रीडिंग रखोगे, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, तो क्या होगा, द कॉन्सेप्ट्स विल नॉट बी क्लियर. तो मैं आपका बेस बनाने के लिए ही आई हैव कम हियर. तो जो बेस स्ट्रॉन्ग रखना, तो अब क्या करना है, आई विल टेल यू. अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसके लीगल प्रोविजंस ये वाला पढ़ रहे हैं कि वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल वो कैसे होगा. ठीक. अब सेक्शन 271 के अंडर ये आता है कि सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है दैट ट्रिब्यूनल कैन वाइंड अप द company in the following circumstances. ठीक. If the company has by special resolution resolved that the company will be wound up by the tribunal. कहने का मतलब ये है कि अगर कंपनी ने बोला कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया मेंबर्स ने कि वी थिंक दैट हमें वी शुड बी winding up the affairs of the company, that is members may pass a special resolution that the affairs should be wound up by the tribunal. In such a case, the company will then petition to the tribunal. It will file a petition to the tribunal for winding up. ठीक. इस केस में क्या है, the company has to file a statement of affairs कि भाई कि what is the statement of affairs, what is actually the where does the company stand right now. So एक statement of affairs भी file करनी होती है. If the company has a resolution resolved that the company be wound up by the tribunal, कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, उसके मेंबर्स ने, कंपनी ने पास किया है, उसका मतलब होता है कि शेयर होल्डर्स ने पास किया है. ठीक है, उसके मेंबर्स ने पास किया है कि हमारी कंपनी ट्रिब्यूनल वाइंड अप करा दे. ठीक. अब इसके अंदर सेक्शन 274 में हम बात करते हैं दैट जहां पर एक कंपनी ने पेटिशन डाला है कि इट शुड बी वाउंड अप और ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई दिस शुड बी डन, तब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैज टू बी फाइल्ड बाय द कंपनी और उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट्स. ठीक. Another way and means जब कोई ट्रिब्यूनल का उसको वाइंड अप कर सकता है अगर कोई कंपनी देश के इंटरेस्ट से बाहर काम करने लग जाए. It has acted against the sovereignty and integrity of the country. Okay, कोई सिक्योरिटी थ्रेट दे कंपनी, हमारे कुछ ऐसे डील किसी एनिमी कंट्री के साथ वो डीलिंग्स शुरू कर दे, या फिर किसी भी तरीके का इमोरल एक्टिविटीज में शुरू हो जाए, इलीगल इमोरल एक्टिविटीज में शुरू हो जाए और ट्रिब्यूनल गेट्स टू नो अबाउट इट, देन द ट्रिब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप. So if the company has acted against the interest of the sovereignty and integrity of India. Okay. अब
तीसरी चीज क्या है, अगर रजिस्ट्रार को लगता है, अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि कंपनी has been affairs of the company have been conducted in some fraudulent manner, जो कंपनी जो काम कर रही है वो fraudulent तरीके से काम कर रही है, लोगों को जानबूझकर एक धोखेबाजी में घुसी हुई है और धोखेबाजी के काम हो रहे हैं और fraudulent manner में काम हो रहे हैं, तब these things could be done, binding का order निकाल सकती है ट्रिब्यूनल. The company was formed for some fraudulent and unlawful purpose. The object of the company was कि fraud ही करना है, तो it was formed for fraudulent and unlawful purpose. अगर ऐसा भी कुछ suspicion create हो जाए and evidence भी आ जाए कि हाँ this has happened, or the persons who are in the management of its affairs have been guilty of fraud. Basically, basically अगर रजिस्ट्रार एप्लीकेशन भेजता है ट्रिब्यूनल को और इन तीनों में से कोई भी केस हो जाए कि रजिस्ट्रार को लगता हो दैट द कंडक्ट इज इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो भी वो काम कर रही है, जिस तरीके से वो काम कर रही है वो फ्रॉडुलेंट है, उसके अंदर कुछ फ्रॉड छुपा है, तब उसको लगता है रजिस्ट्रार को कि द कंपनी वाज फॉर्म्ड फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनलॉफुल पर्पस एट दैट टाइम, या फिर पर्सन्स कंसर्न्ड इन द फॉर्मेशन, जो फाउंडर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, दे हैव बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफिसेंस और मिसकंडक्ट, तब भी ट्रिब्यूनल इसको वाइंड अप करने के ऑर्डर्स दे सकता है. उसके बाद अगर कंपनी रजिस्ट्रार को 5 कंसेक्यूटिव सालों तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं फाइल करती, if the company defaults in filing with the registrar the financial statements or annual returns for immediately preceding 5 consecutive financial years, 5 सालों तक डिफॉल्ट चलता जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली फाइल नहीं हो रही हैं, और एट दैट टाइम ऑल्सो कंपल्सरी, वॉलंटरी नहीं, कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑर्डर can be given. Voluntary का क्या मतलब होता है? When they want it on their own. Compulsory winding up orders can be given by the tribunal. And if the ये जो last वाला point है, E point, ये exams separately भी बहुत बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा. If the tribunal is of the opinion that it is just and equitable that the company should be wound up, just and equitable that the company should be wound up का क्या मतलब है? justified और बिल्कुल सही बात है कि इस बात पे कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए. अब ये जस्ट एंड इक्विटेबल क्या होता है? जस्ट एंड इक्विटेबल, अब जस्ट एंड इक्विटेबल में कुछ देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से सामने आए हैं, जुडिशियल डिसीजन से सामने आए हैं. जुडिशियल डिसीजन क्या होते हैं? किसी ने केस डाला और उसकी जो जजमेंट आई उससे ऐसा लगा कि हाँ भाई दिस इज अ रॉन्ग थिंग एंड ट्रिब्यूनल शुड गिव ऑर्डर्स टू the orders for the company's winding up. ऊपर की जो हमने 4 चीजें पढ़ी हैं, इनके अलावा कुछ ऐसे रीजंस जिससे ट्रिब्यूनल को लगे कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही बात है, इस ऑन दिस बेसिस कंपनी शुड बी वाउंड अप, राइट. इसकी कुछ जुडिशियल डिसीजंस हैं, एग्जांपल्स हैं जुडिशियल डिसीजंस के, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ. ये अलग से क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में. इट हैज बीन आस्क्ड, अगर आप पुराने पेपर्स देखोगे, सैम्पल पेपर्स, आप 10-year पेपर्स देखेंगे, दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेडली आस्क्ड. आर द जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स ऑन व्हिच द ट्रिब्यूनल कैन आस्क फॉर कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. ओके, अब है वो ये जो प्रीवियस जुडिशियल डिसीजंस थे ये कौन से थे? पहले, व्हेन देयर इज डेडलॉक इन मैनेजमेंट. डेडलॉक इन मैनेजमेंट का क्या मतलब है? व्हेन द देयर आर
when the board of directors ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, जब वो ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं इसका मतलब ये है कि एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप में कोई तरीके का कंसेंसस नहीं बैठ रहा। कंसेंसस मतलब वो एक तरीके की डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, किसी एक सोल्यूशन पे नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके टू डाइसेंटिंग ग्रुप्स हो जाते हैं। एक ग्रुप कुछ और दूसरा ग्रुप कुछ कह रहा है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग हिंडर होती है, जिसकी वजह से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक डिसीजंस एंड दे स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर। they are not able to take decisions, they do not talk to each other. जब किसी में डेडलॉक हो जाए, डेडलॉक माने they do not have, it becomes impossible to come to a decision, and when it becomes impossible to take any decisions in a company, it becomes very difficult to manage the affairs of the company, right? जब वो मैनेज ही नहीं कर पाएगा affairs of the company क्योंकि they are two dissenting groups, or the only way to resolve this deadlock is winding up. The tribunal comes in between and the tribunal gives this winding up orders. तो यही सेम चीज येनर्जी टोबैको कंपनी लिमिटेड 1916 में हुई थी, जिसके अंदर दो सेपरेट मैन्युफैक्चरर्स थे सिगरेट के। आप इन केसेस को आप पढ़ भी सकते हो, आपको बुक्स में भी दे रखे हैं। आप जो भी बुक्स यूज करेंगे यू विल two companies amalgamated, cigarette manufacturing companies थी, वो amalgamated and formed a private limited company. उन्होंने private limited company form करी and they were the only X and Y, the people who were the shareholders and the directors, only directors of the company. Private limited company थी ना, तो दो direct, it is fine. So sorry, they had equal voting rights. Now इन्होंने कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, एक क्लॉज डाला था कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है इट वुड बी डिसाइडेड थ्रू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में मतलब कि somebody would, an arbitrator would be appointed to mediate between the two. That person would be finally giving the judgment कि कौन इनमें से ठीक है। इन्होंने आर्टिकल्स में ही एक ऑप्शन दिया था कि अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ, मैं क्या बात कर रही हूँ, प्लीज डोंट लूज द टच, हम लोग इस केस की बात कर रहे हैं। कंपल्सरी वाइंडिंग अप के ऑर्डर्स दे सकता है। तो इस केस में क्या हुआ, दो लोग थे, वो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग उनकी एंटिटीज थी। उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी एंटिटीज को अमेलगमेट कर देते हैं। वो दोनों उसको अमेलगमेट करते हैं और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर देते हैं, और यही दो लोग इसमें होते हैं और यही डायरेक्टर्स होते हैं। Articles में they had kept a point, a clause that in case there is a dispute amongst the two of us, so the arbitrator would be appointed in order to resolve the dispute. तो बीच में dispute आया और एक arbitration हुआ and एक arbitrator एक award दे देता है, मतलब judgment दे देता है, एक judgment pass कर देता है। तो जब arbitrator ने resolve कर दिया तो one of them did not agree to the award which was given by the he did not accept the award which was given by the arbitrator. So both of them became so hostile that they stopped speaking to each other. When they stopped speaking to each other, they were only speaking through the secretaries, their secretary. They were not talking up with each other. So there was a complete deadlock in the management. So the problem was it had to be it had to go to the tribunal and the company had to be wound up. तो इस तरीके से डेडलॉक हो जाता है कंपनीज में। The next one is loss of substratum. Substratum, loss of substratum का मतलब है कि the loss of substratum, that the company actually loses the purpose for it was main object which it was formed to achieve. It loses the purpose. A company substratum is the purpose or the main object which it was formed to achieve, जिसके लिए actually ये बनी थी। So when the substratum goes, मतलब जो object था
कंपनी का बनने का जो पर्पस था, जब वही नहीं है, इट हैज टू बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। जर्मन डेट कॉफी केस है, इसके अंदर एक कंपनी फॉर्म हुई थी। अ कंपनी वाज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉफी। इन्होंने कॉफी बनानी थी फ्रॉम डेट्स खजूर। एक कॉफी बनानी थी फ्रॉम डेट्स अंडर अ पेटेंट विच वॉज टू बी ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। एक पेटेंट ग्रांट करना था उन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग का तरीका, एक पेटेंट कोई ग्रांट करना था गवर्नमेंट ने। तो द जर्मन पेटेंट वॉज नेवर ग्रांटेड। अब इनका पर्पस क्या था कि ये कॉफी की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पेटेंट विच विल बी ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। जब जर्मन पेटेंट ही ग्रांट नहीं हुआ, इसका मतलब कि इनका पर्पस ही लूज हो गया। एंड सो जब एक पेटिशन डाला गया देन बाय द शेयर होल्डर, तब ट्रिब्यूनल ने इनका कंपल्सरी वाइंडिंग अप दे दिया, बिकॉज द कंपनी हैड loss of substratum. The company had lost it. It did not have the object it was actually formed for. जो वो ऑब्जेक्ट ही नहीं रहा तो फिर वो कंपनी का क्या काम करेगी। okay the next one is oppression of minority. okay this is very oppression of minority। इसके अंदर क्या होता है, जब मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स किसी तरीके की ऑपरेसिव पॉलिसी अपनाते हैं। ऑपरेसिव मतलब दबाने की कोशिश करना। दे आर ट्राइंग टू सप्रेस द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कंप्लेंट कर दें इस चीज की, मतलब कि दे ट्राई टू सप्रेस द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। जो मेजॉरिटी वाले हैं वो ऑपरेस करने लगते हैं माइनॉरिटी वालों को। तब क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी के बेसिस पर भी ट्रिब्यूनल जजमेंट दे सकता है कि भाई कंपनी को वाइंड अप कर दीजिए। अब इस केस में क्या हुआ था, द कंपनी वाज वाउंड अप ऑन द पेटिशन ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स व्हेन द डायरेक्टर्स के पास क्या था, दे हेल्ड मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स। ओके सो दे रिफ्यूज्ड टू कॉल AGMs। उन्होंने AGM कॉल करना छोड़ दिया। प्रॉपर अकाउंट्स सबमिट नहीं कर रहे थे। जब माइनॉरिटी शेयर मांगते थे तो प्रॉपर अकाउंट सबमिट नहीं होते थे। तो दे रिफ्यूज टू हैव ऑडिटर्स अपॉइंटेड properly in a proper manner. They did not give information to the minority shareholders when it was required, they had asked for, and they tried to और ये सब वो करते थे। so they were trying to take away the rights of the minority shareholders. In this view what happened, शेयर होल्डर्स ने कंप्लेंट कर दी। जब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने कंप्लेंट कर दी एंड इट वाज क्वाइट एविडेंट, then the tribunal ordered for this winding up, compulsory winding up. Then comes your illegality of the objects and fraud. अगर कोई कंपनी बनी ही इलीगल ऑब्जेक्ट के साथ है, और फॉर दैट मैटर अगर कोई कंपनी बनती है और लॉ चेंज होने की वजह से उसका ऑब्जेक्ट इलीगल हो जाए, ओके कोई पर्टिकुलर, सपोज कोई कंपनी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और कंट्री का लॉ बदल जाता है और सडनली बोल दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना इलीगल होगा। जो पहले लीगल था वो बाद में इलीगल हो जाए, तब भी ट्रिब्यूनल उसको मना कर सकती है, कंपल्सरी वाइंडिंग अप के ऑर्डर्स दे सकती है। ओके देन देयर इज बबल कंपनी। अब बबल कंपनी का क्या मतलब होता है, बबल कंपनी वो कंपनीज होती हैं जिनका कभी कोई रियल बिजनेस रहा ही, दे नेवर ओन्ड एनी प्रॉपर्टी, दे आर जस्ट द कंपनीज व्हिच विल फ्लाई बाय नाइट। इसको फ्लाई बाय नाइट कंपनीज भी बोलते हैं। तो दे आर जस्ट फॉर्म्ड फॉर द हेक ऑफ इट, और उसके बाद इनको कभी भी कोई
they never had any real business, सिर्फ नाम के लिए फॉर्मुलेट हुआ था, ये बनी थी, एग्जिस्टेंस में लाई गई थी, और जब ये पता चलता है तो ट्रिब्यूनल इसको वाइंडिंग अप के ऑर्डर्स दे सकती है। ठीक है, अब मैं आपको एक बारी आई वांट टू गो बैक एंड गिव यू अ जिस्ट कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप कर रहे हैं, बिकॉज हम इतने सारे इसके अंदर प्रोविजंस हैं, बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग कहाँ पर हैं। ठीक है, हम वो मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप कर रहे हैं, उसके अंदर हम कंपल्सरी वाइंडिंग अप कर रहे हैं कि क्या क्या कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, NCLT। ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल अंडर अ पेटिशन सेक्शन 272 जब एक पेटिशन डाला जाता है तब ट्रिब्यूनल कंपल्सरी वाइंडिंग ऑर्डर्स दे सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने करी, और अभी जो हम ये कर रहे थे on the basis of previous judicial decisions, कब just and equitable grounds पर, just and equitable grounds, ये ध्यान रखो, जो हम बात कर रहे हैं just and equitable grounds का क्या मतलब है, आप प्लीज इसको ध्यान रखो, ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, just and equitable grounds, इसका मतलब है कब ट्रिब्यूनल को लग सकता है, other than the above four, कि कब ट्रिब्यूनल को लग सकता है कि हमने वाइंडिंग अप के ऑर्डर्स देने हैं। तो आज तक इतने सारे केसेस हुए हैं, बहुत केसेस हुए हैं जिसके अंदर ट्रिब्यूनल ने ऑन द बेसिस ऑफ देम वाइंडिंग अप के ऑर्डर्स दे दिए हैं। पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप कौन कौन डाल सकता है? ओके, पेटिशन भी बहुत लोग डाल सकते हैं, कंपनी डाल सकती है। पेटिशन कैन बी पुट, पेटिशन क्या होता है, एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप, वो कौन कौन डाल सकता है? कंपनी डाल सकती है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटरीज डाल सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटरीज बेसिकली जो at the time of the winding up they are going to contribute towards the assets of the company. Okay, members वो भी डाल सकते हैं, they can also put for the petition की इस application की इसको अब wind up कर दीजिए। The company and contributories can do it together also. The registrar can also do. Any person authorized by central government can also put an application to the tribunal to wind up. अब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या केस होता है, पर्सन ऑथराइज्ड, जैसे कि इंस्पेक्टर्स ने अगर इन्वेस्टिगेट किया है अफेयर्स ऑफ द कंपनी, देयर आर सर्टेन इन्वेस्टिगेशन हुआ है कंपनी का, एंड ऐसा अपीयर हो जाए दैट द बिजनेस हैज बीन कंडक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर, तब क्या होगा, ऑन द the central government can authorize a person to put a petition, put an application to the tribunal to for the winding up of the company. अगर again in case अगर ऐसा कुछ हो जाए कि कंपनी देश की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट काम कर रही है, इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन ला रही है, एक थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है हमारी देश पे, तब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी पेटिशनर बन सकते हैं, वो खुद भी ट्रिब्यूनल को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, भाई वाइंड अप करो, दिस इज नॉट अ गुड थिंग विच इज हैपनिंग, वाइंड इट अप। ठीक है, ओके, अब कुछ रूल्स बदले हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 24 जनवरी 2020। रूल्स आए हैं कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 लाख और आउटस्टैंडिंग लोन्स 50 लाख से ज्यादा नहीं है, जो स्मॉल कंपनीज हैं, वो उनको वाइंडिंग अप के लिए NCLT से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले सकते हैं। तो ये अभी आया है, दिस हैज जस्ट कम जनवरी में, दीज थिंग्स हैव कम अप, एंड ये देखिए ये जो रूल्स हैं, ये आई हैव रिटन हियर, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि थोड़ा बर्डन NCLT पे भी कम हो जाएगा, उनको पूरा लीगैलिटीज, बहुत ज्यादा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं ऑफ वाइंडिंग अप। ओके, तो दिस इज अ रीसेंट डेवलपमेंट, रीसेंट रूल आया है, एंड दीज रूल विल अप्लाई टू कंपनीज विद टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स ऑफ 25 lakhs and outstanding loans of up to 50 लाख। तो ये ज्यादा
बड़ी कंपनीज नहीं होंगी, ये छोटी मोटी कंपनीज होंगी, प्राइवेट कंपनीज ज्यादातर जो इस तरीके के वाइंडिंग अप में जाती हैं, छोटी कंपनीज। ओके, अच्छा, अब जब ट्रिब्यूनल के पास पेटिशन जाता है, पेटिशन माने एप्लीकेशन जाती है बाय एनी ऑफ दीज, कंपनी ने कर दिया, किसी मेंबर ने एप्लीकेशन दे दी वाइंडिंग अप के लिए, या फिर दोनों ने मिलकर दे दी, इन दोनों ने मिलकर दे दी, रजिस्ट्रार ने खुद वाइंडिंग अप कर दिया, क्योंकि इन्होंने यही वाले सारे रीजंस हैं जो हमने पीछे करे हैं। रजिस्ट्रार ओके बाइंडिंग अप के लिए है, पेटिशन के लिए किसी कंपनी के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्सन को ऑथराइज कर देती है कि तुम पेटिशन, क्योंकि ये फ्रॉडुलेंट मैनर से कंपनी चल रही है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद पेटिशनर बन जाती है, या स्टेट गवर्नमेंट खुद पेटिशनर बन जाती है, क्योंकि वो कंपनी देश के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है या कोई अगेंस्ट देश के काम है। तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? व्हाट कैन ट्रिब्यूनल डू? ट्रिब्यूनल कैन डू एनी ऑफ दीज, डिसमिस इट। ट्रिब्यूनल को लगता है कि भाई दिस इज नॉट फाइन, डिसमिस इट विद और विदाउट कॉस्ट, कि भाई या तो कॉस्ट फीस लेने के बाद या विदाउट दैट इट कैन डिसमिस इट। कोई भी तरीके का इंटरिम ऑर्डर निकाल सकता है। इंटरिम ऑर्डर मतलब फॉर द टाइम बीइंग, कुछ फाइनल ऑर्डर से पहले जो इंटरिम ऑर्डर, किसी तरीके का छोटा ऑर्डर फॉर द टाइम बीइंग ये कर दिया जाए। सपोजिटली फॉर द टाइम बीइंग कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को शट कर दे, या कुछ बिजनेस ऑपरेशंस को शट कर दे क्योंकि हम इंक्वायरी शुरू करने वाले हैं। तो किसी भी तरीके का इंटरिम ऑर्डर जो ट्रिब्यूनल को सही लगता है, दैट कैन बी गिवन ऑन द पेटिशन। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि कंपल्सरी वाइंडिंग अप जब ट्रिब्यूनल ने करनी है, तो जो पेटिशन डाला जा रहा है बाय एनी ऑफ द अबव, ये जितने कोई भी लोग जो पेटिशन डाल रहे हैं, इसके बाद ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? ओके, ट्रिब्यूनल की क्या पावर्स है? या तो वो डिसमिस कर दे कि अरे दिस इज नॉट पॉसिबल, ये गलत है, नॉट पॉसिबल इन द सेंस कि वी डू नॉट अग्री टू इट, या फिर कोई इंटरिम ऑर्डर दे दे इन बिटवीन। इंटरिम ऑर्डर देने का मतलब है कि किसी भी तरीके से बोल दे कि कंपनी शुड स्टॉप इट्स ऑपरेशंस फॉर अ सर्टेन टाइम, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कंपनी को बोल दे कि हमें आप अपनी डिटेल्स दीजिए। ओके, अपॉइंट अ प्रोविजनल लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी टिल द मेकिंग ऑफ वाइंडिंग अप। अच्छा, ऑर्डर। अब ये प्रोविजनल लिक्विडेटर क्या होता है? एक होता है कंपनी लिक्विडेटर, ओके, एक है कंपनी लिक्विडेटर, और एक है आपका प्रोविजनल लिक्विडेटर। बेसिकली ये जो प्रोविजनल लिक्विडेटर है, ही is the person who is appointed by the tribunal just to investigate the company's affairs and the assets of the company till the time the winding up hearing is pending. Provisional liquidator, जो कंपनी लिक्विडेटर होता है वो तो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो तो अपॉइंट होता है वो फाइनल कॉल के लिए कि वो एसेट्स को रियलाइज करवाएगा, वो एसेट्स को कलेक्ट करेगा, ही विल रियलाइज द एसेट। रियलाइजेशन मतलब बेचकर पैसा जो रियलाइज करवाएगा और उसके बाद पे ऑफ करेगा डेट्स। यू नो, ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू लिक्विडेट द कंपनी। लेकिन प्रोविजनल लिक्विडेटर कौन होता है? Provisional liquidator is the person who only investigates the company affairs, okay, and assets of the company pending the hearing of the winding up application, जब तक वो pending चल रही है। या फिर tribunal directly orders for winding up of the company or any other order it thinks fit। तो ये under section 273 है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। All things can be done by the tribunal, क्योंकि tribunal is the one who is making the compulsory winding up, तो वो इनमें से कुछ भी चीज कर सकता है। ये मैंने आपको बताया ही था। जहां पर petition for winding up is filed before the tribunal by any person other than the company, the tribunal shall, if satisfied, order the company to file its objections along with the statements of its affairs within 30 days of the order। अगर कंपनी अपने आप नहीं बट किसी और कोई और पिटिशन फाइल करता है वाइंडिंग अप के लिए, तो ऑब्वियसली कंपनी अपने डिफेंस में ऑब्जेक्शंस करेगी कि नहीं भाई हम
वाइंड अप नहीं करेंगे, हमारे ये डिफेंस देगी अपना, उसके साथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल करेगी विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर गिवन बाय द ट्रिब्यूनल। ओके, और कुछ ऐसा है तो ट्रिब्यूनल में अलाउ अ फर्दर 30 days टू द कंपनी टू फाइल इट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन रेंजिंग फ्रॉम 20,000 to 5 lakhs और बोथ, दोनों चीजें भी हो सकती हैं। मैंने आपको बता ही दिया है हु इज द कंपनी लिक्विडेटर, एग्जैक्टली कंपनी लिक्विडेटर। वाइंडिंग अप के लिए the tribunal at the time of passing of the order of winding up shall appoint an official liquidator or a liquidator from the panel maintained under subsection 2 as the, एक कंपनी लिक्विडेटर का पैनल बनता है, वो पैनल को ऑफ एंड ऑन अपडेट भी कर दिया जाता है, कईयों के नाम रिमूव कर दिए जाते हैं, कईयों को ऐड कर दिया जाता है, उसमें से ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया जाता है in order to for the proceedings of winding up. Okay. Before starting this insolvency and bankruptcy code, because it will take some time, I would want to take some, you can have a break of 5 minutes. Okay, I will be back in another 5-7 minutes.